Okay, so before we begin the poem that we are going to do today, let us discuss. How many of you have seen? Nobody will shout first, right? That I'll make you understand. How many of you have seen the show The Jungle Book? Almost everybody. Nidhar, have you never seen it? Dekha hai na? So why you have not raised your hand? Okay. So hands down. That's good. Okay. So what was the name of the main character of that? So what was the story all about? Can anybody explain? Raising a hand. Okay. You last word. Okay, come here, Gurnaman, come here. Everybody will listen to him carefully. If you have some other point in your mind, we'll discuss that also, right? So we'll start with Gurnaman. Let us see what he knows about Mowgli. Yes. Loudly. मोगली इसमें आदिवासी का रोल प्ले कर रहा था. Adivasi. Was he a tribal? Okay. So, okay. He played the role of a tribal person. Right. All right. Good to see. Then, who else will tell me anything about that? Yes, Gitang. Quickly. जो मोगली और फैमिली के पास रहता था. Then what happened? चलो इसके आगे वाली स्टोरी किसी और से सुनेंगे. You'll continue from where he has left. ठीक है? तो वो की भाषा बोलता था और उसका जो उसका एक तरह से टीचर था वो उसको जंगल में सरवाइव करना सिखाता था कि कैसे सरवाइव. Who was this teacher? बगीरा. And who was Bagheera? The Black Panther. Listen. Both Bagheera and Balu, both of them taught him the things and how he needed to survive. And along with the whole family that adopted him. Yes. Come quickly. Excuse me, ma'am. And who was Sher Khan? Okay, very all right. Now, tomorrow we'll try to, if I'll get a period, we'll see a short episode of that story. I'll bring that for you. And chaliye. So basically, this boy Mowgli was not a tribal person. A tribal person is a person. Tribal हम उस पूरे group of persons को बोलते हैं. Tribe होती है जो पूरी family वहाँ रहती हो. तो Mowgli didn't live with his family. वो अपनी family के साथ वहाँ नहीं रहता था. His parents were hunters, and one day when they went in the jungle to hunt, his parents were killed by Sher Khan. But which homework? Fourth class, tomorrow you bring your that competition booklet also. If we'll have time, so we'll solve that also. So you have to bring your reader book as well as competition booklet tomorrow, right? Okay. So we were talking about Mowgli. So this boy Mowgli went with his parents. He was a very small child when he went to the jungle for hunting. His parents, both of his parents, were killed by that tiger whose name was Sher Khan. Yeah, so he was the only one who survived. Survived करना means जो वहाँ पे जी पाया, means बच गया जो. Now when he was left all alone there, he was taken up by a family of wolves. उसको एक wolves की family अपने पास ले गई थी, and they brought him up. Brought him up means उसने उसको बड़ा किया. Wolves की family में वो बड़ा हुआ. So he was a human being. उसकी body human being जैसी थी. But all his behavior was like of a bull. He couldn't talk like all of us. Why? Because he always remained in the animals, company of the animals and birds. वो हमेशा जंगल में रहा, उसके आसपास कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था. So obviously आप इमेजिन करो, आप अगर छोटे से होते हैं और आप एक ऐसी फैमिली में रहते हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलती, तो आप क्या सीखते हैं? इंग्लिश सीखते हैं ना. अगर आप ऐसी फैमिली में रहते हैं जो सपोज
साउथ इंडियन किसी फैमिली में होते हैं तो आप वहाँ की लैंग्वेज सीख जाते हैं। जो लैंग्वेज, जो चीजें हमारे बचपन से हम लोगों के आसपास चलती है, हम वही वैसी ही चीजें अडॉप्ट करते हैं, हम वही तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं। So this boy Mowgli, he used to live in a jungle and he was always surrounded by animals. So जिस तरह से animals communicate करते हैं, communicate करना means एक दूसरे से अपनी बात, अपने मैसेज एक दूसरे को देना। हम लोग तो बोल के कर लेते हैं, हमारी लैंग्वेजेस are different, लेकिन जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं क्या वो बोलते हैं हमारी तरह? नो। सो हाउ डू दे डू इट? हाउ डू दे डू इट? समटाइम्स मे बी अ साइन लैंग्वेज, बट साइन लैंग्वेज में लगता है बर्ड्स के सामने। तो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस? दे मेक साउंड्स। एनिमल्स होते हैं वो साउंड्स इस तरह के अलग अलग किससे निकालते हैं। मींस इफ दे आर हैप्पी सो दे विल मेक डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स। if there is some danger around them they'll make different kind of sounds, ताकि उनके आसपास जितने भी उनके फैमिली है या उनके आसपास भी जितने लोग हैं, जितने एनिमल्स बर्ड्स हैं, सबको पता चल जाए कि वो डेंजर है, देयर इज सम डेंजर अराउंड देम। हाँ, सो दिस बॉय मोगली हु लिव्ड विद देम, वो भी ऑब्वियसली उसे कोई लैंग्वेज बोलनी नहीं आई, वो भी अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता था, कैसे अपनी फीलिंग्स using the same thing that the animals around him used. If you have seen कि जो wolves होती है वो howl करती है ना, है ना? And if you have yes, and वो भी करते हैं क्योंकि उनकी मम्मा वैसे करती है। And similarly जो मोगली था, आपने नोटिस किया उस सीरीज में वो मोगली भी वैसे साउंड्स निकालता था, ठीक है? So these kind of people, आप जहाँ रहते हैं, listen, आप जहाँ रहते हैं, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आप उन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, आप उन्हीं की तरह बोलते हैं, आप उन्हीं की तरह अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है ना, यू शुड कीप गुड कंपनी। गुड कंपनी मीन्स अपने आसपास अच्छे लोगों को अपने आसपास रखो या अच्छे लोगों के साथ रहो। जैसे लोगों के साथ जिस तरह की हम सीखते हैं चीजें, जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे हम चीजें सीख जाते हैं, ठीक है? So अगर if I suppose I live in between animals, animals को तो कोई social etiquettes नहीं होते, उन्हें कुछ नहीं पता कैसे behave करना है, ठीक है? उन्हें ये नहीं पता कि खाना कुक करके खाना है, they'll eat whatever they'll get. So इसी तरह जो मोगली था, he also became like an animal because वो हमेशा रहते हैं एनिमल्स के बीच में था, उन्हें उससे उनकी लैंग्वेज समझ आती थी, उनका बिहेवियर समझ आता था, ठीक है? उनके सारे सीक्रेट्स पता थे। What can be the secrets of animals and birds, by the way? आप अच्छा listen, okay, can you tell me कि नेस्ट कैसे बनाना है? आते हैं नेस्ट बनाने? No, because that is what only the birds can do. They have got this gift from God. God से मिला उनको ये चीज, ठीक है? So ये जो एक सीक्रेट है उनका, वो उन्हीं को पता है। वो सीक्रेट कौन जान सकता है? वो सिर्फ बर्ड्स ही बता सकते हैं। हम लोग उनका सीक्रेट we cannot find out. बेटे मुझे पता है, is it something different? If I give you sticks and I tell you to weave a nest, will you be able to weave? ठीक है? So these are some of the secrets that the birds and the animals have. They know how to build a nest, then they know how to where to hide. ठीक है? हमें अगर suppose आपको पता है कि जब अब विंटर्स आ गई है तो हमारे घर में जो इतने सारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, लाइक दिस लिजर्ड्स, वो कहाँ चले गए सारे? They have gone to hibernation. What is hibernation? Hibernation is to go for a very long period of sleep. बस सोने चले गए हम। Now they'll come out when the weather will change. जब दोबारा गर्मी आनी स्टार्ट होती है फेब में, उसके बाद वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? सो अब हमें पता है वो कहाँ छुपे हुए हैं। Kitang and Upan, you know everything about the animals. They know how to build a nest. They know where the birds are hiding. They know where the animals are hiding. Are you sure? We don't know. Means where do they go for hibernation? वो उनका एक secret है, right? So there are so many secrets of every animal and bird. And who can know those secrets? वही लोगों को उन secrets का पता है जो उनके आसपास रहते हैं, जो हर टाइम उनके साथ रहते हैं, उन्हें सीक्रेट्स पता होते हैं। आपके फ्रेंड्स के सीक्रेट्स आपको ही पता होंगे ना, सबको तो नहीं पता होंगे। Why? Because you spend maximum time with your friends. ठीक है?
So we are going to read in today's poem. We are going to read about a boy who is known as Hiawatha. His name is Hiawatha. But this boy doesn't live with the animals all alone. वो अकेला नहीं रह रहा है. He is not like Mowgli. मोगली के आसपास कोई भी उसके जैसा ह्यूमन बीइंग नहीं था. वो सिर्फ एनिमल्स के बीच में रहता था. बट हियर दिस बॉय हिवाता, ही इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली. उसके जैसे लोग और भी हैं उसकी फैमिली में, राइट. एंड दैट दीज पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट, ऐसे लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो बाकी दुनिया के कांटेक्ट में नहीं आते, मीन्स उन्हें नहीं पता कि हम लोग को देखो कितनी चीजें यूज कर रहे हैं. हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे किसी से बात कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट. लेकिन जो ट्राइबल होते हैं वो लोग अपने जंगल के बीच में रहेंगे. वो वहीं पे पैदा होते हैं और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है. मीन्स उन्हें कुछ नहीं पता कि फॉरेस्ट के बाहर लाइफ कैसी है. ऐसे लोग जो हमेशा फॉरेस्ट में रहते हैं, दे डोंट नो एनी सोशल कल्चर. नहीं पता कैसे सोशली इंटरेक्ट करना है किसी के साथ, कैसे. उन्हें आदिवासी कहा जाता है. आदि मानव जो थे उन्हें कुछ भी नहीं आता था. दे वर मोर ऑफ एनिमल्स. वो दखते भी एनिमल्स जैसे थे. लेकिन जो ये लोग हैं, ये लोगों को बोला जाता है आदिवासी. वाई? वासी मीन्स वास करना, कहीं पे रहना. हाँ. सो प्रिमिटिव मीन्स जो अपनी एज से बहुत पुराने लोग होते हैं उन्हें आदि बोलते हैं. ठीक है. सो आदिवासी मीन्स द ट्राइबल पीपल हु लिव इन जंगल्स, who do not wear clothes like us. They will wear वही. अब देखो जंगल में जो लोग रह रहे हैं उनका कपड़े कहाँ से आएंगे? वो क्या पहनेंगे? लीव्स के कपड़े बना के पहन लेंगे, एनिमल्स की स्किन के कपड़े पहन लेंगे, ट्री की बात उतार के उसके कपड़े बना लेंगे. ऐसे जो उनके अगर वो घर पे बनाते हैं तो those are also made using the dry leaves, dry then plants, sticks लेके ये सब चीजें यूज करके वो अपने घर बनाते हैं. So such people are called tribal people. Now, is it clear what are tribal people? Is it clear to everybody what are tribal people? Yes. So this boy Hiawatha in the poem is also a tribal boy, right? And he lives there with his grandmother. Nokomis, right? Let us start reading the poem now. Hiawatha was a red Indian. Please, I want the pencils in everybody's hand, as I always tell you. Why your cameras are off, by the way, the online students? Asim, Viraj Puri, why are your cameras off? Agamjot, are you lying on the bed? Sit straight. All right, let us start. Hiawatha. Hiawatha was a young red Indian boy. No, red Indian boy means? वो क्या रेड कलर का था? No. लाल भारती में. I did ask you to tell me in Hindi translation. But thing is कि ये जो नॉर्थ अमेरिका, if you have heard of नॉर्थ अमेरिका के फॉरेस्ट में जो रहते हैं ट्राइबल, हर एरिया के जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, उनके एक अलग ही ट्राइब होता है. उनकी ट्राइब को एक नाम दे दिया जाता है. ठीक है. जैसे इंडिया में सपोज एक स्टेट में जो ट्राइबल लोग मिलेंगे, दे विल बी कॉल्ड बाय अ पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर नेम. ऐसे किसी और स्टेट में जो मिलेंगे उनको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं कि ये वाली ट्राइब है, ये वाली ट्राइब है. तो नॉर्थ अमेरिका के फॉरेस्ट में मिलने वाली वन ऑफ द ट्राइब्स, दीज आर रेड इंडियन बोला जाता है. इंडियन वर्ड को इंडिया से नहीं रिलेट करना हमने. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. और वो अपनी grandmother के साथ रहता था वहाँ पे. And what is a wigwam? Here, if you can see in the picture, can you see this cone-shaped tents? Yes. These are called wigwams. These are tents made of. These are tents in a cone की shape में है. So these are called wigwams. So, cone-shaped, yes. This I will not tell you what you have to write. ये आपकी कॉमन सेंस है कि आपको पता नहीं चाहिए कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो मैं लिख लूँ इसको. Vidang, very good. Is your drawing class over now?
So he lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. Nokomis taught Hiawatha about the wonders around them. और Nokomis हिवाता को अपने आसपास होने वाले what are wonders? जादू. Okay, not exactly जादू. जादू is magic. अजूबे means wonderful things around them. जो उसके आसपास हैरान कर देने वाली चीजें होती थी, उसके बारे में उसकी दादी माँ उसको बताती थी. देखिए, लिसन बेटे, अब देखो वो जंगल में रहते थे, वो बुक्स तो पढ़ते नहीं थे. दे डोंट हैव बुक्स, दे डोंट हैव स्कूल्स. तो बड़े जो घर के होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं या आपकी दादी माँ है. चलो लेट अस टॉक अबाउट योर ग्रैंडमदर. इफ वी टॉक अबाउट योर ग्रैंडमदर्स, आपकी ग्रैंडमदर्स हो सकता है कईयों की ग्रैंडमदर्स इलिटरेट हो, मींस वो पढ़े लिखे नहीं होंगे. तो क्या वो आपको कोई बात समझाते हैं? अगर वो आपको बुक्स नहीं पढ़ा सकते तो वो कोई अच्छी बातें सिखाते हैं ना, कि ये ठीक है, ये गलत है, ऐसे करना चाहिए, हमारे टाइम में ऐसे होता था, ऐसा होता है ना. वो आपको कितनी सारी बातें, स्टोरीज भी बताते हैं और भी बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो आपके लिए यूजफुल है. सो इसी तरह ये जो उसकी मदर थी, ग्रैंड मदर थी हिवाता की, ये भी उसको आसपास के बारे में बहुत सारी बातें बताती थी जो उसके लिए बहुत जरूरी थी जानना. सो शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स. स्टार्स के बारे में बताती थी, द ट्रीज, द इंसेक्ट्स, द बर्ड्स, द एनिमल्स एंड मेनी अदर थिंग्स. मींस उसके आसपास वाली सारी चीजों के बारे में बताती थी. जैसे जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, उनको बहुत सारे प्लांट्स के बारे में पता होता है कि ये वाले प्लांट्स के लीव्स अगर हम खाएंगे तो क्या होगा, अगर हमें चोट लगी तो हमें क्या लगाना चाहिए, कौन सी ट्री के लीव्स को लगाना चाहिए. तो इस तरह की नॉलेज कैसे मिलती है उन्हें? उनके पेरेंट्स बताते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं. इस तरह की नॉलेज भी तो वो पास ऑन होती है ना आगे से आगे. अब सपोज आपका पेट ठीक नहीं है तो मम्मा कहती पुदीने वाली चाय बना देते हैं. तो जो पुदीने वाली चाय मम्मा ने बनाई आपको, और वो आपको हमेशा याद रहेगी, और जब आपके आगे बच्चे होंगे तो आप भी याद रखोगे, है ना. Sorry, she's so happy. Why? What's making you so happy? Means आपको चीजें ऐसी होती है, ऐसी नॉलेज होती है जो आप अपनी जनरेशन में आगे पास ऑन करते हो. There's nothing to laugh. If he'll cry, you'll also cry. Still, you have not stopped laughing. तो कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ बातें, कोई नॉलेज ऐसी होती है जो आप अपने से आगे बताते जा रहे हो. आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके पेरेंट्स को समझाई वो चीज, आप अपने बच्चों को समझा, आपके पेरेंट्स आपको समझा रहे हैं, आप आगे समझाएंगे. तो इस तरह की नॉलेज जो होती है, जो बुक्स में नहीं होती है हर बार. कुछ चीजें ऐसी होती है जो हर चीज बुक्स में नहीं मिलती है. कुछ नॉलेज हमें हमारे बड़े सिखाते हैं. ठीक है. तो इसी तरह जो नोकोमिस थी, यस, did I ask you this? Yes. Okay. Right. So where were we? Yes. तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी, अब उसको बुक्स तो नहीं पढ़ा सकती थी, बुक्स उसके पास थी नहीं. उसकी ग्रैंड मदर उसको आसपास वाली सारी चीजों के बारे में बताती थी. Right? Hiawatha grew up to love them all. What does this mean? Grew up to love them all. Grew up means बड़ा हुआ. To love them all means, yes, you know, when you have some persons around you, आपके आप जब पैदा हुए आपके घर में जो लोग थे, आपने उनको बड़े होते हुए, बड़े जब आप हो रहे थे तो आपने हमेशा उनको देखा अपने आसपास, और आप इवेंचुअली उनसे प्यार करते हो ना. सबसे अपने आप उनसे प्यार करने लगे. आपको किसी ने कहा तो नहीं इनसे प्यार करो, या इनसे आपको अपने आप उनका अफेक्शन होगी, प्यार हो गया. तो इसी तरह जो हियावाता था, उसके आसपास जो एनिमल्स और बर्ड्स हमेशा रहते थे, he actually started loving them all because that was kind of a family for him. वो एक तरह से उसकी फैमिली थी सारी. So he could talk to the birds and the animals and they to him. और हियावाता जो था वो बर्ड्स और एनिमल्स से बात कर सकता था, और वो बर्ड्स और एनिमल्स उससे बात कर सकते थे. तो बात करने का मतलब क्या है? लैंग्वेज ऐसे बात करना? नो. बात करने का मतलब है कि अपनी बात उसको समझा देना या उसकी बात को समझ जाना. हम कई बार अपनी बात जो बताना चाहते हैं, कई बार किसी को बिना बताए भी समझा देते हैं ना. आपका जब मूड अपसेट होता है, आप अगर ऐसे सैड हो तो बैठे, मम्मा आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मम्मा आपका फेस देख के समझ जाती है ना, है ना. सो ये चीजें तो हम कुछ चीजें हम बिना बोले बोल सकते हैं. इसी तरह ये जो हियावाता था, ये बिना बोले भी उनकी बात समझ जाता था और बर्ड उसकी बात समझ जाते थे.
because they don't eat all the animals, right? उनके जो hunt करते हैं ना वो सारे animals को नहीं hunt करके खाते हैं, तो particular. You are always talking. Why? क्या problem है आपको? Let us start the main poem now. Then the little Hiawatha learned of every bird its language. और ये जो छोटा सा बच्चा हिवाता था उसने सारे birds की language सीख ली. Learn of every bird, हर bird के बारे में सीख लिया, ये bird कौन सा है, वो कैसे रहता है, क्या खाता है, और सबकी language भी सीख ली. Learn their names and all their secrets. उन सबके names भी उसने सीख लिए थे, याद कर लिए थे, और उनके सारे secrets भी. अभी हमने डिस्कस किया क्या secrets हो सकते हैं, कि वो क्या खाते हैं, कहाँ पे छुप जाते हैं जाके, ठीक है, कैसे नेस्ट बनाते हैं. So how they build their nest in summer, कि गर्मियाँ जब आती है तो अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं, ये उसको हिवाता को भी आता था. Where they hid themselves in winter, और जब winters आ जाते हैं तो वो कहाँ जाके छुपते हैं, ये भी उसको पता था. Talked with them whenever he met them. ये जो word है यहाँ पे लिखा हुआ, right? So this is actually whenever. This is the short form. Okay? So whenever talked with them whenever he met them. उनसे वो बातें करता था जब भी उनको मिलता था. Call them Hiawatha's chickens. और सारे birds को क्या कहता था, ये मेरे क्या है, chickens है. Why the word chicken? Chicken is the young one of a hen. Hen के young ones chicken होते हैं, ठीक है, तो young ones means किसी के babies. तो कहते थे जैसे ये सारे birds मेरे क्या है, मेरे अपने बच्चे हैं, right? That's why I used to call them Hiawatha's chickens. Of all beasts, he learned the language. What is the meaning of the word beast? Big animals, wild animals को usually beasts कहा जाता है. Of all, आपने I told you to underline the words. So beast word किसी को tough लगा नहीं? Nobody tried to bring out the meaning of this. What is the meaning? So beasts are big animals. Of all beasts, he learned the language. और उसने सारे animals की भी language सीख ली थी. Learn their names and all the secrets. उनके नाम भी पता थे उसको animals के, और उनके सारे secrets भी पता थे. How the beavers build their lodges. What are beavers? It is a rodent. Here in the book also they have given you the picture of a beaver. It actually belongs to the kind of squirrel जैसा होता है, उसके आगे वाले teeth बड़े से होते हैं. Yes. It digs the ground, ठीक है. So उसे ये भी पता था कि beavers अपने lodges means उनके घर, जो beavers घर बनाते हैं उन्हें lodges बोलते हैं. How the beavers build their lodges, beavers अपने घर कैसे बनाते हैं. Where the squirrels hid their acorns, और squirrels अपने acorns. What are acorns? They are the nuts, ठीक है, walnut जैसी shape का होता है वो. Acorns होते हैं बेसिकली, वो एक ट्री होता है, ओक ट्री. क्या ओक के ट्री में उसके वाले वो नट्स होते हैं. So they are the nuts that grow on the oak tree. ठीक है, you know that these squirrels are very fond of nuts, है ना? So he also knew कि वो जो squirrel है वो अपना खाना कहाँ छुपाती है. आपको पता होता है, अगर आप सपोज आपकी मम्मा ने चॉकलेट दी, आपको पता होता है आपके भैया या सिस्टर ने कहाँ छुपाई है वो अपनी, उसको पता होता है आपने कहाँ छुपाई है. आप ऐसे अगर उसको पता होगा तो छुपाने का क्या मतलब बना. छुपाते तो आप वही चीज है ना जो आप चाहते हैं दूसरा यूज करें, है ना. सो बट आप ये सीक्रेट अपने बहुत लव्ड वंस होते हैं ना, जिनके साथ जिसको आप पूरा ट्रस्ट करते हो, उनको बता देते हो कि मैंने वहां छुपाई है, बताना मत किसी को, है ना. What is this? ठीक है. So he also knew, yes, he also knew कि squirrels अपने acorns जो है वो कहाँ छुपाती है. How the reindeer ran so swiftly. Swiftly means quickly, fast. तो reindeer जो animal होता है, जो dog थोड़ा deer जैसा होता है, उसे ये भी पता था कि reindeer जो है वो इतनी fast कैसे भाग लेता है.
Why the rabbit was so timid? What is timid? Shy. Lack of confidence means shy. जिस पर्सन को जो सबसे डरता है, डरपोक होता है ना, रैबिट देखे ना कैसे भागता है फटाफट आपको देखते ही, तो इसे ये भी that's true. That's true actually. Okay. So why the rabbit was so timid? Rabbit इतना डरता क्यों है? वो इतना shy क्यों है? Talked with them whenever he met them. और जब भी उन एनिमल्स से मिलता था उनसे वो बातें करता था. Call them Hiawatha's brothers. और एनिमल्स के लिए क्या वर्ड यूज करता था? ये मेरे सारे भाई हैं. Birds क्या थे? Chickens. और एनिमल्स के लिए क्या यूज करता था? They are all Hiawatha's brothers. Right? Okay. Who is the poet of this poem? H.W. Longfellow. So you must also know the name of the poets when you're reading the poem, right? Okay. So tomorrow you have 2 periods.